Ready for the session? Great. In today's fast-paced world, where external pursuit often overshadows inner peace, the importance of reconnecting with ourselves cannot be overstated. Imagine living a life aligned with your true purpose, free from need of external validation. It's an absolute delight to welcome you to this inspiring session at the 6th edition of Orange City Literature Festival, a celebration of ideas, stories, and transformative conversations brought to you by the SGR Knowledge Foundation and powered by Raisoni Education. I'm Akash, thrilled to be your host for this thought-provoking session. In a sphere that often measures success by external achievements, we sometimes lose sight of the profound joy and tranquility that comes from within. But what if we could pause, reflect, and reconnect with our inner bliss? Imagine the freedom of living in alignment with your true purpose, unburdened by the pursuit of external validation. Today, we are honored to explore this transformative concept with a luminary in the field of spirituality and self-discovery, Dr. Pawan Kumar Mishra. Let's give a big hand. Dr. Mishra is a renowned spiritual scientist and a Vedic astrologer, guiding individuals, groups, and organizations worldwide to awaken their true potential, purpose, and happiness. He is the founder of the Shrine of Universal Love, which is also called as Soul, which facilitated 9 years of unbroken spiritual speakers from diverse backgrounds united in their quest for inner guest. His transformative influence extends to corporate leadership as a spiritual guide for help, an initiative of Copenhagen Business School, Denmark. Pawan ji is also a celebrated author with works including Living Hanuman and his latest book, Habitual, The Non-Pursuit of Happiness. Among this, his accolades are the Spiritual Scientist Award and an honorary doctorate in spiritual science and writing from Hessen International University, Germany. Including him, we have our moderator for the session is the versatile Mr. Sandeep Agrawal. Let's give a big hand. He is a chartered accountant, an entrepreneur, and a passionate advocate for holistic well-being. An alumnus of the Scindia School, Gwalior, and St. Xavier's College, Kolkata. His interests include singing, writing, yoga, acupressure, and posture correction. Alongside managing his business in industrial gas and engineering plastic, he actively works to raise social awareness on various critical issues. His diverse experience and curiosity make him the perfect guide for today's session. So without further ado, let's embark on this 40 minutes of enriching journey of rediscovering inner bliss. Now over to you, the guest. Thank you so much. So nice to see a very young audience here. And यंग से खाली मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, यंग एट हार्ट होना ज़रूरी है. तो यहाँ हम लोग सब वी आर ऑल यंग एट हार्ट. तो सुबह सुबह पहला सेशन, इट्स अ वेरी ग्रेट चैलेंज. आपके लोगों को भी यहाँ पहुँचना टाइम पे, आई नो इट्स अ ग्रेट चैलेंज. तो एक बार हम सब अपने खुद के लिए ताली बजा लेंगे. Thank you, Akash, for the introduction. And अब हम बातें शुरू करेंगे. ये कोई स्पीच नहीं है. हम बात आपस में जैसे बातें करते हैं, थोड़े ज्यादा लोग हैं और कोई बात नहीं है. तो पवन जी से भी बात हो रही थी मेरी, तो बोले हम बातें ही करेंगे बस, और कुछ नहीं. और जो भी बातों में आप पूछना चाहें, कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर आप पूछेंगे, चाहे लिख के रख लीजिए. एंड में 10-15 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर सेशन है. ये किताब आपने देखी है कहीं नीचे बुक शॉप में या कहीं भी? कोई बात नहीं, नहीं भी देखी है तो मैंने भी पहली बार देखी थी परसों, तो और इनसे तो मुलाकात अभी हुई है. पर ये किताब का टाइटल ही इतना सुंदर है. कोई बताना चाहेगा बेटा इस टाइटल का मतलब क्या होता है? एनीबडी? ये टाइटल सुन के क्या ऐसा लगता है, क्यों इन्होंने ऐसे? हाँ बेटा बोलो.
क्या बात है, बहुत सुंदर। इनके लिए एक ताली बजा दीजिए प्लीज। और इसमें आगे भी ये लिखा है कि द नॉन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये पढ़ा क्या आपने? मैं पढ़ के सुना रहा हूं, द नॉन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि हम हैप्पीनेस के पीछे भाग नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों होगा भी? ये इतनी सुंदर चीज है, कोई सुंदर चीज देखे तो हम तो उसके पीछे भागते हैं ना। ये इन्होंने टाइटल पे लिख दिया कि हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागना। तो अब ये बताएंगे कि ये क्या है, ये कि भाग, इतनी सुंदर चीज हैप्पीनेस के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और ये लिख रहे हैं कि मत भागो उसके पीछे। तो पवन जी बताएंगे कि क्यों ऐसा। सबसे पहले अब बिग नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते। सब लोग आए हैं यहाँ पर और सब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग के नज़र में तो सब बच्चे ही हैं। और इतनी प्यारी बात एक ये है कि इस किताब में इसी उम्र के दो बच्चों के बारे में ये किताब है। तो यहाँ पर ये किताब जिनके लिए लिखी गई है वही लोग सामने बैठे हुए हैं, तो इससे मन इतना खुश हो जा रहा है। अक्सर जो किताब के बारे में जब भी हम चर्चा करने जाते हैं तो वहाँ पर बड़े वृद्ध आयु के लोग बैठे रहते हैं, 60-60 के ऊपर के लोग, जिनको बैठ के सुनना है सुन लिया। और यहाँ बच्चे मिलकर के सुन रहे हैं, एक किताब को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, और उसका भी टॉपिक हैप्पीनेस है, जो कि सबके लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग जो उसी को ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत, मेरा मन बहुत ओवरवेल्म्ड है, बहुत खुश है कि आप लोग सब आपके सामने में बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब जैसा कि सर ने कहा ही है कि ये तो नॉन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, ये सब कैसे बात बना। तो क्या है, एक जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बाकायदा, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। वहाँ के यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, मौलिक अधिकार है भाई, तुम खुशी को खदेड़ सकते हो, चेज करो, खुद खुशी के पीछे भागो, ये तुम्हारा अधिकार है। मिलेगी ये अधिकार नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, खुशी मिल जाएगी इसका गारंटी नहीं है, तुम भाग सकते हो खुशी के पीछे। और उससे क्या हुआ, एक माइंडसेट बना कि खुशी तो कोई बाहर भागने की चीज़ है। और ये बात तो 18वीं सदी की बात है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई। तो तब 200 साल गुजर गए, सबके दिमाग में है कि भाई खुशी कोई बाहर की चीज़ है, चलो भागते हैं उसके पीछे में। अब कहाँ मिलेगी खुशी? तो किसी ने कहा चलो भाई गाड़ियाँ मिल जाएं, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, कुछ तो मिले तो खुशी मिल जाए कहीं पे, वेकेशंस हो जाएं, मोबाइल फ़ोन मिल जाए। i17 आने वाला है, सब लोग प्लानिंग में लगे हैं, इसको बेचूंगी, उसको लूँगी, इसमें इतना मिलेगा, उसका इतना करूँगी, सब चक्कर में है उसमें कि जो i17 हाथ में आ जाएगा मैं तो बिल्कुल मस्त हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, है ना। i17 के आगे तो मुझे खुशी चाहिए ही नहीं। ऐसे करके वो एक माइंडसेट बना जैसे कि हैप्पीनेस तो कोई ऐसी चीज़ है, खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको खदेड़ा जा सके, जिसको जाके हंटिंग की जा सके जिसकी। तो जब मेरे पास रूपा ने अप्रोच किया कि आप हैप्पीनेस के ऊपर में लिखिए, तो हमने सोचना ये शुरू किया संदीप जी कि इसके ऊपर और क्या लिखा जा सकता है। भाई इतनी तो किताबें पढ़ी हैं, हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी इन 3 steps, 5 steps, 10 steps, डू, ये 4 चीज़ करें और ज़िंदगी भर खुश हो जाएं। इतनी किताबें लिख दी, उसमें मैं क्या लिखूंगा और, है ना। तो मेरा विचार ये चला कि हैप्पीनेस है क्या चीज़, कैसे समझा जाए कि ये क्या है। हाँ, ऐसा सोचने लगे। तो हम हमेशा जब ऐसे समस्याओं में फंसते हैं तो एक सीक्रेट आप लोगों को बताते हैं। जो अंग्रेज़ी वगैरह के शब्द हैं ना, उनके मतलब में ज़्यादा गहराई नहीं होती है, उतनी ही होती है। कुछ हिप हिप हुडे टाइप साउंड कर रहा है तो हैप्पीनेस हो गया, इतनी बात रहती है। ये इसका गहरा अर्थ क्या है? तो हमने सोचा हैप्पीनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बोल सकता है? खुशी, एक और नाम हिंदी, हाँ
आनंद नहीं, हाँ क्या, स्नेह नहीं, हाँ ना, एक और आसान नाम, इतना मुश्किल नहीं। हाँ ये किसने बोला, कौन बोल रहा है? सुख, जोर से बोलो बेटा, कौन बोले हैं? खड़े होके बोलो बेटा। वेरी गुड यही वर्ड मेरे दिमाग में आया भाई, हैप्पीनेस को सुख कहेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा तो सुख में कौन सी बड़ी बात है? फिर इससे क्या होगा? इससे ये किताब बन गया। कैसे? जब बात बोलेंगे सुख, है ना, सुख, सुखी रहो, सुख, ये तो रहते हैं ना, सदा सुखी रहो, कहते हैं सुख। सुख का अर्थ क्या है ना, हमको सुख का अर्थ चाहिए, सुख का अर्थ ये सब आ जाएगा। अच्छा हम बता देते, हम लोग के पास टाइम तो इतना ही नहीं, तो यही बोलते चले जाएंगे हम लोग के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रह जाएंगे इस खुशी में कि बच्चे सुनने के लिए बैठे हुए। जो बोलना चाहूंगा, ये पेपर आउट किया हुआ नहीं है। हाँ, ये पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं जो बोलना चाहूंगा, एब्सेंस ऑफ दुख इज इक्वल टू सुख। अच्छा नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं, वाइंड अप करते हैं, फिर विषय पे आएंगे। तो जब सुख वर्ड दिमाग में आया ना, तो हमने कहा सुख का क्या अर्थ होगा, तो सु का क्या अर्थ होगा, ख का क्या अर्थ होगा, है ना। तो ये कौन सी बड़ी बात है। सु केम छा, सु छा, सुना है, गुजराती लोग बोलते हैं सु। सु मतलब जितने भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसे ऐसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में शांति है, सुकून है, प्रसन्नता है, उल्लास है, वो सारा सु में आ गया, सु में, ठीक है ना। सु में सब कुछ आ गया। फिर ख का मतलब क्या हुआ, क ख ग घ, इनका भी कोई मतलब होता है क्या? होता है। किसी ने यजुर्वेद का नाम सुना है ना, हम लोग के वेद है। यजुर्वेद का आखिरी मंत्र, आखिरी अंत, 40वां उसका खंड है, उसका आखिरी मंत्र क्या कहता है? ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म, अंत कंक्लूड कर गया यजुर्वेद। ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म। कम का अर्थ क से, क ख ग पढ़ते ना, क का अर्थ होता है आनंद, ख का अर्थ होता है आकाश, स्पेस, जगह। तो क्या कह रहा है? ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो आनंद है, वह जो ब्रह्म है वो आकाश है, स्पेस है। अब ख से हो गया स्पेस, है ना, और सु से हो गया सारा कुछ अच्छा बढ़िया, जो 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 दिमाग में सब डाल दो, ऐसा वाला स्पेस। आप समझ गए? एक जगह है जो सुकून से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ, वो है, ये है, वो है ना। वो जगह कहाँ? वो यहाँ तो है नहीं, वो तो, और अगर यहाँ नहीं है तो एक ही जगह है जहाँ वो जगह होगा, यहाँ, है ना। तो सुख का अर्थ क्या हो गया? ऐसा एक जगह है, ऐसी एक स्पेस, ऐसा एक अभ्यंतर का स्पेस जो कि सु हो, हर तरह से उसमें वो सुंदर हो, सुगंधित हो, सुवासित हो, सुसंकल्पित हो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसे कहते हैं ना, हे मेरे मन तुम शिव संकल्पों से, शिव का अर्थ यहाँ पर शिव जी डमरू वाले नहीं है, शिव का अर्थ यहाँ पर सुंदर, अच्छा, बेहतरीन संकल्पों से भर जाओ। तो वह जो मन का अभ्यंतर स्पेस है वो शुभ संकल्पों से भरा हुआ हो, उसी को सुख कहेंगे, है ना। अंदर का स्पेस, सिंपल जैसा वर्ड है वैसे ही उसका मीनिंग है। तो अगर वो अंदर है तो वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो कह दिया, जिससे सब गुमराह हो गए, भागने लग गए उसके पीछे, अभी हमने कह दिया नॉन परस्यूट। वो परस्यूट से मिलने वाला है नहीं, ये 1 2 3 करके करने वाला है नहीं, वो तो कुछ अंदर का ही स्पेस है। तो ऐसे करके ये किताब की जो शुरुआत हुई लिखने की, तो वैसे शुरू हुई। और भी बात हम लोग करेंगे, अभी पहले संदीप जी कुछ कहना चाहेंगे। सर कहा, सर मैं तो चाहता हूं कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें। और कितना सुंदर व्याख्या किया है इन्होंने कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे ही पास में। तो राइट टू हैप्पीनेस तो दे दिया, पर क्या हम बोल सकते हैं क्या यूएसए का हर आदमी हैप्पी है? तो वो हमें अपने आप ही जवाब
खोजना है कि खैर ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं रहता है, वहाँ भी लोग खुश हैं, दुखी हैं, पर सुख का जो आपने व्याख्या किया तो बहुत ये मेरे लिए भी नई चीज़ है। और शिव तो सब अनादि अनंत ही हैं, और सुख भी जो हमारे अंदर है, जो हम सच्चिदानंद स्वरूप खुद ही हैं, तो वो भी हम अनादि अनंत खुद ही हैं। तो अब इस विषय पे और आगे बढ़ते हैं हम। एक इसमें आपने किताब लिखा है सर, ये हाउसकीपिंग के बारे में। ये मैं तो सोच रहा था ये कोई हाउसकीपिंग पता है क्या होता है? कोई होटल इंडस्ट्री का है क्या यहाँ पे? कोई होटल हॉस्पिटैलिटी का कोई हाउसकीपिंग सुने होंगे ना, कभी होटल में जाते हैं फॉर हाउस टू फॉर रूम सर्विस प्रेस 3, तो यहाँ भी कुछ लिखा है ऐसे इन्होंने हाउस विषय। तो हाउस करवाना है तो आपको कांटेक्ट करें सर? देखिए सर, बताएं सर इसके विषय में। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो अब देखिए क्या है कि जब हम लोग सुख की बात कर रहे थे, तो अब जब अंदर की बात है, वो है ना, एक ऐड भी आता है, ये तो अंदर की बात है। तो ये जो अंदर की बात होगी, बाहर की तो बात ही नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि बाहर हमें सफलता नहीं प्राप्त करनी है। यंत्र श्री चक्र सुना होगा, कोई बता सकता है क्या है श्री चक्र? आप भैया बताइए। उसमें एनर्जी प्रोवाइड, एक चक्रस होते हैं जैसे कि लक्ष्मी पूजा वगैरह। नहीं, एक्सप्लेन करिए, देखने में कैसा लगता है? थोड़ा सर्कल में ट्रायंगल्स बने, स्टार्स बने रहते हैं। एग्जैक्टली कुछ सर्कल बैठे, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ ट्रायंगल है, अंतवंत है, ऐसे करके देखता हो। तो वो हमारा इनर मैप कैसे हो सकता है? अंदर का फ्लोर प्लान श्री चक्र कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली बात क्या है, श्री चक्र को दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में से माना जाता है। इसके ऊपर आप स्टूडेंट्स हैं, इसके ऊपर मैथ्स के PhD हुए हैं, गूगल करेंगे पता चलेगा, ठीक है? उसमें इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हैं जिससे वो बनता है, ऐसे हाथ से बनेगा नहीं जब तक वो सारे इक्वेशंस आपको पता नहीं है। तो वो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसमें बेसिक एक स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखना, याद आ ही जाए। एक स्क्वायर, एक उसके अंदर में सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर में पेटल्स है, कमल फूल के जैसे 24 पेटल्स, उसके अंदर में 4 ट्रायंगल ऊपर जा रहे हैं, 5 ट्रायंगल नीचे जा रहे हैं। तो ट्रायंगल है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, और एक डॉट, बस। इसमें इनर कैसे बन गया, अंदर का मैप कहाँ से बन गया इसमें? ऐसा तो हमारा मन दिखता नहीं। तो ये क्या है? ये बहुत सिंपल समझेंगे अगर ना, तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर वो अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व को दिखाता है। स्क्वायर पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? सारा चीज जो सॉलिड, ये टेबल, कुर्सी, ये हाथ, बॉडी, ये सब पृथ्वी तत्व से बना हुआ। इसको स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। मन का वो हिस्सा जो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है और उससे डील कर रहा है। मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, है ना? तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग अब बिगड़ा हुआ क्या 1 सेकंड के अंदर कोको कोला पिएंगे नहीं, सब लोग हाथ उठा देंगे। सबको पता वो बेकार चीज है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या पता है? नौजवान लिया क्या फालतू, बुढ़े लोग बोलते हैं कोको कोला मत पियो, मार जाओ तो पिएंगे। हम तो बर्गर खाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे, चौमिन खाएंगे, सड़क पे हम रात के 2 बजे भी खाएंगे, हम दिन के 12 बजे दिन तक भी उठेंगे, हम कुछ भी करेंगे इस शेड्यूल के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा सोच नहीं है कि मेरे इनर माइंड का स्क्वायर जोन है, वो अगर बिगड़ा तो हमारा अंदर का सुख बिगड़ जाएगा, स्पेस बिगड़ेगा। आप समझिए? तो वो जो स्क्वायर है उसके ऊपर सारी हमारी फिजिकल चीजें वहां जुड़ी हुई है माइंड की। ऐसे सर्कल वो वायु तत्व है, वायु तत्व जो चीज मूव कर रहा होती है। तो वायु तत्व माने प्राण तत्व। तो हम लोग सांस लेने में बड़ा गड़बड़ करते हैं, किसी को ध्यान नहीं रहता कैसे सांस
हमें सांस ही लेना नहीं मिलता, बिगड़ चुका है। क्योंकि फिर इस बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें पॉस्चर से भी, अभी आप जैसे ऐसे बैठे, सब एक्सपर्ट है पॉस्चर पे, सब बच्चों को जब तक स्ट्रेट पॉस्चर नहीं होगा सांस का फ्लो ठीक नहीं रहेगा, सांस का फ्लो ठीक नहीं हुआ सर्कल बिगड़ गया, सर्कल बिगड़ गया, सांस का रिदम अगर बिगड़ा, इमोशंस के रिदम बिगड़ जाएंगे सांस। Sir, I want to ask you one thing. Chakra is made of Panchatattva. Panchatattva, that's what I'm talking about. So, outer one, earth element, inner one, wind element, just thumb rule, basic. श्री चक्र के ऊपर इतने मोटे मोटे किताबों की लाइब्रेरी बनी हुई है, हम खुद ही उसको पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन जस्ट बेसिक। उसके बाद क्या है, वही चक्र जो है वो टाइम को भी, काल को भी इंडिकेट करते हैं, टाइम इज मूविंग। अभी हम लोग टाइम का भी हिसाब किताब रखते नहीं, संडे है तो 2 बजे दिन में उठो, सैटरडे है तो 1 बजे रात को सो, और इसको चलाओ इंस्टा फटाफट, इसमें कोई नहीं पूछता है कितना देर करना पड़ेगा। मेडिटेशन सिखाइए किसी को तो 5 मिनट चलेगा, हाँ चलेगा। अब इंस्टा में किसी ने नहीं आज तक क्वेश्चन डाला कि कितने देर इंस्टा चलाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चला है। तो क्या सर्कल बिगड़, स्क्वायर बिगड़ गया, सर्कल बिगड़ गया, स्पेस अंदर की कई भैंस पाने में, है ना, सबका अनुभूति खत्म। अब भागना शुरू करेंगे तभी भी नहीं होता क्योंकि सर इतने पैशनेट है सब्जेक्ट पे कि एक बोले जा रहे हैं पर समय सर 11:25 हो रहे हैं। फुल स्टॉप। तो क्विकली सर्कल, उसके बाद आगे पेटल्स, वो हमारे बिहेवियर्स को कर रहे हैं। जो अपवर्ड ट्रायंगल है वो फायर एलिमेंट है, डाउनवर्ड ट्रायंगल वाटर एलिमेंट है। उन दोनों का मिक्स होकर के हमारे जो पास्ट इंप्रेशंस हैं माइंड के अंदर वो स्पेस है, और जो बिंदु है वो हम स्वयं इनफाइनाइट वो पॉइंट ऑफ जीरो लेंथ जीरो ब्रेथ। कोई अगर साइंस के स्टूडेंट है तो जानेंगे ना, वो बिंदु जो है वो शिव शक्ति, जो पुरुष पॉसिबिलिटी और उसकी जो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्या कहते हैं उसको हम लोग पोटेंशियल, प्योर पोटेंशियल, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, शिव और शक्ति है, उसका वो पॉइंट। तो उसके बेसिस पे इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि किस तरह से हमारा इनर स्पेस है, उसकी हाउसकीपिंग कैसे करें, अभी अगली बार होटल में जाएं तो प्रेस फ्री फॉर हाउसकीपिंग जब करें तो श्री चक्र और पवन जी को जरूर याद करें। तो बहुत सुंदर हाउसकीपिंग को इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, और अनायास ही इन्होंने हैप्पीनेस का इक्वेशन आपको दे दिया। अभी ये माइक बंद हो गया और ये खड़े होके बोलने लगे और आपने सबने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, बिना माइक के भी है अच्छा है और माइक के साथ भी अच्छा है। ये बहुत एक सुंदर इन्होंने उदाहरण दिया कि जिस हालत में हम हैं, इधर वी कैन बी हैप्पी इन व्हाट वी हैव और वी कैन कीप ऑन क्रेविंग फॉर व्हाट वी डोंट हैव। तो जिस भी सिचुएशन में समय हमें बताता नहीं है कि क्या सिचुएशन हमारे सामने आएगा, पर जो समय आया उस समय में अगर हम हैप्पी हैं तो हम वही मोमेंट्स को जोड़ जोड़ के हम अपना हैप्पीनेस जोड़ सकते हैं। और यही मेरे हिसाब से तो यही हैप्पीनेस का इक्वेशन है। बाकी हैप्पीनेस का इक्वेशन सर बताएंगे। अच्छा, एक चीज हम वेरी करते हैं, हैप्पीनेस का जो स्टेट है ना, इमोशन नहीं, सुख जो है एक अवस्था है, वो हमारी नेचुरल अवस्था, वही हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। कुछ निषद का सहारा लेकर के कैसे करके उसको बताए हैं। तो एक बार अगर मन को साफ रखेंगे ना तो कोई भी जोड़ने की जरूरत नहीं, सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्टेट ही वैसा बन जाएगा जिसमें आप मस्त रहेंगे, जिसको मस्त नहीं बोलते, मस्त। हैप्पीनेस का कैसे सर, ये आपने तो बता दिया कि हैप्पीनेस कैसे परस्यूट नहीं करना हमारे अंदर है, बट ये कुछ इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वही तो हाउसकीपिंग के चक्कर से शुरुआत ही करेंगे अपने स्क्वायर से। मेरा स्क्वायर ठीक है, मैं शरीर को ठीक रख रहा हूँ, मेरा वो जो स्क्वायर है वो स्पेस है, एक्शन है, और सर्कल जो है वो टाइम है। सबसे फंडामेंटल चीज है, आप अपने डे प्लान जरूर बनाना, ठीक है। और जैसे 7 सुर होते हैं ना गाने के, ऐसे मैंने इसमें बताया 7 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने टाइम और एक्शन को मैच कर दिया तो दिन आपके काबू में आ जाएगा। तो 7 कौन सी चीज है? उठने का टाइम, सोने का टाइम, 2 चीज हो गया। 3 वक्त खाने का टाइम, मेडिटेशन का टाइम और एक्सरसाइज का टाइम, बस।
ये 7 हो गए, ये 7 चीज अगर सेम टाइम मेंटेन करो, जो भी टाइम आपको ठीक होता है लेकिन उसको सेम टाइम रिदम में मेंटेन करेंगे, तो स्क्वायर और सर्कल थोड़ा थोड़ा रिदम में आना शुरू हो जाएगा। जितना रिदमिक स्पेस होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियर की बात करी है कि हमारी बिहेवियर कैसी हो, अहिंसा से, उसका जो फंडामेंटल राग है वो अहिंसा ही हो, प्रेम और अहिंसा से दूसरे को इज्जत देते हुए हम लोग को अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। तो ये सब तमाम बातें, और संदीप जी ने वो हैप्पीनेस इक्वेशन की बात कर दी, तो मैंने इसमें इक्वेशन ये दिया है, आप लोग को साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स के कुछ होंगे, है ना, इसमें दिया हैप्पीनेस इज इक्वल टू पोजेशंस जो हमारे पास है, हमारे पास जितनी चीजें डिवाइडेड बाय वांट्स, मुझे क्या चाहिए, जो है चीजें हैं, प्राप्त डिवाइडेड बाय चाहत चाहिए। तो जो प्राप्त है और जो चाहत है, चाहत हमेशा प्राप्त से ज्यादा ही होता है, इसलिए हैप्पीनेस हमेशा 1 से कम ही रहेगा, 0.0 कुछ ही रहेगा। तो उसमें जुगाड़ क्या है हैप्पीनेस का, जो है वो तो है ही है, लेकिन अपनी चाहत के लिस्ट को कम करते चले जाएंगे, इधर हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। पोजीशन कितना बढ़ा लेंगे, पूरा मॉल भी खरीद के ले आए ना, तो रखने की जगह देने को वही अनहैप्पी कर देगा कि मैं इतने कपड़े को रखूंगा, लेकिन मेरी नीड कम, मेरी जरूरतें कम, और उसको पलट दिया उठा करके अगर हम लोग दूसरों की जरूरतों को भरना शुरू करें, तो पता चला कि खुशी और हमारा स्क्वायर्स से बढ़ना शुरू करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा सुख के स्पेस में। अगर हम ब्रह्म का रूप लें, ब्रह्म मतलब जो बड़ा है, बृहति ब्रह्म, जो बड़ा इंक्लूसिव है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो हम इस स्पेस को जितना बड़ा कर देंगे उतना खुश हो जाएंगे। इसको जितना घटा के इतने में ले आएंगे तो मैं तो इतनी बड़ा हूँ, मुझे तो हैप्पीनेस समझ मुझे चाय चाहिए, चाय मिला नहीं, इतने में तो यहीं पे चाय से सुख, और चाय की जगह कॉफी मिल जाए तो दुख, यही चलता रहेगा। तो ये भी एक बात, यहाँ हम विराम देते हैं, ओपन टू ऑल ऑफ यू, जो सवाल कुछ भी पूछा चाहे, कुछ भी कहना चाहे, बहुत सुंदर। यहाँ तक पर किसी को नहीं समझ में आया या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ये देखिए कोई ज्योमेट्री है नहीं कि 2 + 2 = 4। ये हर आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, हर आदमी अपने कोई भी या कुछ ऐड करना चाहते हैं हैप्पीनेस के बारे में। जैसे चिन्मयानंद जी ने इसी चीज पे बहुत सुंदर एक व्याख्या किया है कि जो सर ने कहा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को कम करते जाइए जो वांट्स है हमारी, अब उसको कम करते करते क्या हम उसको 0 पे ला सकते हैं, क्या ऐसे स्टेट पे हम ला सकते हैं कि हमारी नीड्स कुछ भी नहीं है। अब मुझे पानी चाहिए तो मुझे ये 2 मिल गई, नहीं यार ये वाली अच्छी नहीं, बिस्लरी चाहिए, ये कितनी भी बढ़ सकती है, हमको कुछ भी दे दे, पर मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मुझे 1 चम्मच भी पानी दे दिया तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नाउ व्हाट इज दैट स्टेट कि मेरी नीड्स 0 है पर मुझे फिर भी ये मिल रहा है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, मुझे मिलना ही है, पर डिनोमिनेटर 0 है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट दैट इज 1 divided by 0. Any mathematical student here can define 1 oblique 0? That is the bliss, that is the सच्चिदानंद। वो सिचुएशन पे अगर हम पहुंच सके तो 1/0। चिन्मयानंद जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसका व्याख्या, पर कभी मौका पड़े तो भगवत गीता उनकी पढ़िएगा जो उन्होंने पढ़ा है, बहुत सुंदर से। हाँ, माइक क्वालिटी इज नॉट गुड, बहुत डिस्टर्बिंग। हेलो, 1/0 स्टेट जो है दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस इन माय ओपिनियन। सर आप मुझे करेक्ट करेंगे सर, आप मुझसे बहुत ज्यादा इसमें है, पर चिन्मयानंद जी की जो पढ़ी थी वो अनायास याद आ गई इनका पढ़ के। देखिए बच्चे लोग, ये जो है ना 1/0, कई बार घबराहट होती है ना सोच के कि अगर क्या, तो ये बात इसको सोचना है, फिजिकल लेवल पे इसको नहीं घटाना है। फिजिकली तो गाड़ी, घर, कपड़े सब रहेंगे,
ये मेंटल स्टेट, ठीक है। क्या होता है, जो कुछ लोग यहाँ पर जैन हैं, दिगंबर जैन कोई है, जो जानते हैं जो दिगंबर जैन होते हैं वो लोग कपड़े तक भी नहीं पहनते हैं, है ना। ये पता है, कई दिगंबर जैन साधु हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते, सिर्फ उनके ऊपर में एक कपड़ा रखते हैं ताकि कोई कीड़े वगैरह बैक्टीरिया का ये ना हो। तो हमें उधर नहीं जाना। उन्होंने क्या किया, उसको लिटरली अपने वांट्स को जीरो कर दिया, लिटरली मतलब एक्चुअली कर दिया। खाना भी खाते हैं हाथ से, पानी इसी से पीते हैं, ऐसे सोते हैं, सोएंगे भी नहीं, ठीक है ना। वो क्या कर दिया उन्होंने, फिजिकल आधिभौतिक अवस्था पर भी उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। हाँ, लेकिन हम लोग व्यवहार में हैं, हम लोग को बड़े ऐश की जिंदगी जीनी है, मस्त। माइंड में कुछ नहीं चाहिए, माइंड मेंटल मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो वाली जो एक अवस्था है उसको शांत कर देंगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, मैं इस दुनिया को सुंदर कैसे बना सकती हूँ, मैं उस परमात्मा के साथ मिल करके उसका क्या माइंड है, उस माइंड का कौन सा सबसे मैं कर सकती हूँ। तो उधर अगर आपने ध्यान दे दिया और नीड्स और इसके बारे में ध्यान कम कर दिया, आपको लगेगा जैसे आपके सारे नीड्स अपने आप ही फुलफिल होते ही चले जा रहे हैं। ये आप लोग अप्लाई करिएगा, फिर जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो ना हो, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अपने आप देखेंगे चीजें मैनिफेस्ट कर रही है। एफर्ट फुल करना है ना, लेकिन हैप्पीनेस को चेज नहीं करना, उस एफर्ट में एक्सेलेंस को चेज करना है। मैं अपना बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। और भगवत गीता का सार आपके सामने रख दिया इन्होंने, तो ये तो मैं आभारी हूँ और मैं फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ उनको। और आप लोग जो जो इंटरेस्टेड हैं ज्यादा जानकारी में, ये किताब नीचे मिल रही है, पवन जी भी यहीं पे हैं, आप चाहते हैं तो फोटो ले सकते हैं इनके साथ, इनके बुक भी साइन करके देंगे आपको। ये छोटे से कार्ड्स हैं, इनके बारे में डिटेल भी है, इसके बारे में। ऋषिकेश में रहते हैं, हम सब मिलके वहां चलेंगे एक बार और सुंदर चर्चाएं करेंगे इस पे। तो अगर कुछ और प्रश्न कोई नहीं है तो हम इसको सत्र को, हाँ बेटा माइक चाहिए आपको? हाँ माइक लोगे तो बेटा वो रिकॉर्डिंग, हमने गलती कर दी कि हमने माइक यूज नहीं किया तो रिकॉर्डिंग गड़बड़ आ जाती है। सर जैसे बहुत जगह सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो साधु संत होते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि अगर हैप्पीनेस को पाना है तो हमेशा योगा और मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, कि आप खुद ही सेटिस्फाई हो सको, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बात किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी हैप्पीनेस के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि फिजिकल बीइंग में हैप्पी होना ज़रूरी नहीं है, हम व्यवहारिक लोग हैं, तो हमें तो उस चीज़ में योगा और मेडिटेशन कितना इफेक्टिव होता है, कितना वर्क करते हैं? एक ये है कि जो योगा और मेडिटेशन कहते किसको है, इसके ऊपर ही तो इतनी सारी बातें हो गई इसी के नाम में जिसका अंत नहीं है। हाँ, लेकिन जो इनर हाउसकीपिंग है, सुख के लिए माइंड को जो साफ सुथरा रखने का जो काम है, रोज घर में डस्टिंग करते हैं, अपन भी करते हैं, कुछ तो बर्तनी संभाल के रख दी, वो हाउसकीपिंग का हिस्सा है। तो वो जो संभाल का काम है वो ध्यान का काम है ना। एक बार ध्यान दे करके देखेंगे मेरा मन कहाँ है, वो नहीं कि सुबह से 5 मिनट। आप देखें जो लोग अच्छे बच्चे हैं वो लोग सारा दिन अपने घर को ठीक ही रख रहे होते हैं। फोन उठा तो ठीक जगह रखा, कपड़े उतारे तो कायदे की जगह पहले ही रख दिए। हमेशा ध्यान रहता है कि मैं किस चीज़ को कहाँ रख रही हूँ, और कोई इधर उधर अगर रखा तो हाथ क्या उसको ठीक करते हैं। ये थोड़ी कि कल सुबह में आधे घंटे घर में ठीक करूँगा, ऐसा नहीं कोई करता है। तो ऐसे माइंड को हमेशा, माइंड इसको हम लोग कहते हैं अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, मन को वॉच करते रहना है सारा दिन कि मैं अभी ये माइंड में कौन सी स्टोरी चल रही है, बेगारू स्टोरी चल रही है, कौन सी किसको चेज कर रहा है। ये माइंड एक्सीलेंस को चेज कर रहा है, ये माइंड डिजायर्स को चेज कर रहा है, मैं कहाँ किस स्पेस में हूँ, उसको ध्यान कहते हैं। तो जरूर वो बहुत अच्छी बात है। और योग जो है उसका आसन प्राणायाम, ये जो अंग है ये तो सिर्फ उसका एक छोटा अंग है, उसका बड़ा अंग है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, परिग्रह, जो यम नियम, जो अष्टांग राजयोग है। तो जो हमारा शीत चक्र है उसमें जो अंदर के 24 पेटल्स हैं
उसमें हमने उसको भी एक्सप्लेन किया, स्पोक में एक्सप्लेन कर दिया। तो बिल्कुल ठीक आप करें कि योग और ध्यान जो है वो हमारे सुख को बनाने का एक टूल है, एक कारण है ना, कारण है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और कुछ योग का मतलब पता है बेटा? योग मतलब कुछ दो चीजें मिलती हैं, उसको योग कहते हैं। ये कौन सी दो चीजें? बहुत सुंदर, आप अपने एज के बियॉन्ड हो बेटा, इसको आगे प्रगति करो इस पे, और इस तरह से ही करोगे तो आप भी यहीं पे बैठोगे बेटा, और हम आपके प्रोग्राम में आके टिकट खरीद के बैठेंगे बेटा। और कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो समाप्त करें सत्र से, या और कुछ? आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा मिल करके।